Okay. Okay, so in alpha scattering experiment हमने देखा था कि हमारे पास था एक बॉक्स, a lead box, in that lead box we kept some radioactive sample. Okay, what is use of radioactive sample? Yes students, radioactive sample का फायदा क्या है? That gives you alpha particles, right? The radioactive sample gives us alpha particles. So there is a radioactive sample inside this lead box. The box consists of radioactive sample. Okay, in front of that box we have one lead made up of what? lead का ही प्लेट है हमारे पास ना, गोल्ड बाद में, पहले lead का प्लेट, राइट? तो हमारे पास lead का प्लेट है, तो this lead plate, just a second. Okay, which allows the fine beam of alpha particles to pass through. Then we have a foil of gold, right? हमारे से gold का foil है in front of lead plate. Okay, this is the gold foil. Okay, gold foil is surrounded by zinc sulfide, बराबर है? So gold foil is surrounded by zinc sulfide screen. Okay, gold foil तो from radioactive sample which is alpha particles, radioactive sample जो alpha particle emit करेगा, this alpha particle they pass in a straight line. Okay, जो बाकी के alpha particle हम लोग यहाँ पे lead plate पे absorb कर लेते हैं, they pass through that gold foil. And what observations, okay, and what are the observations made based on that the structure of atom was discussed by scientist Rutherford. तो उसने क्या बोला कि उसने क्या देखा, most of the alpha particle pass through gold foil without any deflection. Most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. तो बहुत से alpha particle they pass through without any deflection. तो class इसका मतलब क्या बोलो? Hello, if most of the alpha particle pass without any deflection मतलब क्या? There is a lot of space. It has more space, empty right? space. There is a lot of empty space in the atom. तो एटम में बहुत सारा empty space है. There is a lot of empty space in the atom and atom is very much hollow. Atom बहुत सारा खाली होता है, ठीक है? So you can see here the center में nucleus है and alpha particle which are passing. So alpha particle which are passing to the atom. और क्या प्रॉब्लम है समझा नहीं. Alpha particles are passing to the atom because of the lot of empty space, right? तो बहुत सारा space empty space है atom में. Okay, so class एक question MCQ के लिए याद रखो. If what's the radius of nucleus? The radius of nucleus is approximately 10 raised to minus 15 meter, and radius of atom is approximately, एक काम करते हैं हम लोग ये चेंज ही कर देते हैं, and radius of atom is approximately 10 raised to minus 10 meter. तो क्लास the radius of nucleus देख सकते हैं आप 10 raised to minus 15 meter and radius of atom 10 raised to minus 10 meter. तो क्लास if ask the question कि as compared to size of
न्यूक्लियस, एटम कितना बड़ा होता है? न्यूक्लियस के साइज से कंपेयर करें तो एटम का साइज कितना ज्यादा होता है? एनीबॉडी? इफ यू कंपेयर साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइज ऑफ एटम, तो साइज एटम न्यूक्लियस से कितना साइज में ज्यादा होता है? एनीबॉडी? इफ यू कंपेयर 5 times. कितना? 5 times. 5 टाइम्स। चलो देखते हैं हम लोग। आपने 5 टाइम्स बोला, हाँ। तो क्लास रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, राइट? रेडियस ऑफ एटम कितना है? 10⁻⁻10, राइट? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10⁻15। तो क्लास इफ एक रेशियो, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻10 इंटू 10⁻+15 बराबर ना क्लास? ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10⁻5। तो रेडियस ऑफ एटम upon radius of nucleus, that ratio is radius of nucleus, that ratio is anybody? 10⁵ मतलब एटम न्यूक्लियस से, एक नाम में चेंज कर देता हूँ, ये यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। So if I say radius of atom upon radius of nucleus, if I take the ratio, so radius of atom is 10⁻⁻10, radius of nucleus 10⁻⁻15, so 10⁵. So radius of atom upon radius of nucleus, this ratio is 10⁵. The radius of atom is, yes, how many, आपने कितना बोला? कितना? 5 टाइम्स बोला था ना? चलो बोलिए, 5 टाइम्स या 10⁵ टाइम्स? 10⁵. 10⁵ टाइम्स मतलब क्या? न्यूक्लियस से एटम 1,00,000 गुना बड़ा होता है, समझ रहे हैं? 10⁵ मतलब 1,00,000 होता है, बराबर ना? So if I compare size of atom and size of nucleus, so nucleus is 10⁵, sorry, atom is 10⁵ times bigger than radius of nucleus. तो अगर ये मेरे पास ये न्यूक्लियस है, तो ये एटम, तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्लास बीच में क्या हमारे पास बहुत सारा, बोलिए? Empty empty space. There's a lot of empty Space. space. I hope अभी आपको समझा ये शायद। Yes. Yes. क्लास ये दोनों वैल्यू याद रखो, ये दोनों वैल्यू एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं इसके। रेडियस ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 radius of atom is approximately 10⁻⁻10 meter. Radius of atom is approximately 10⁻⁻10 meter, and radius of nucleus is approximately 10⁻⁻15 meter. So atom is 10⁵ times bigger than radius. The radius of atom is 10⁵ times radius of nucleus. बराबर है? तो क्लास अगर हम लोग इस हिसाब से जाएंगे तो हमारा जो न्यूक्लियस था बहुत छोटा है, एटम बहुत क्या है? बड़ा, राइट? Okay, the nucleus at the center, and these are electrons which are present around the nucleus, which are revolving around the nucleus. So class, since there is large gap, so most of the alpha particle pass through the nucleus without any, most of the alpha particle pass through the atom without any deflection, right? बहुत सारे alpha particle without any problem they pass through the atom. Class, कल आपको मैंने बताया था क्या इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स No. Electrons are extremely tiny particle, so they don't have that power to repel the alpha particle, right? हाँ, तो क्लास कुछ अल्फा पार्टिकल कैसे रिपेल हुआ है? कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ऊपर गिरे, कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ऊपर गिर गए और वापस कितने एंगल से वापस आ गए? 180 डिग्री से, राइट? 180. तो हम लोग बोलते हैं अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक, बराबर ना? हाँ। एंड क्लास कुछ अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरे, तो न्यूक्लियस बहुत हेवी है, वो पॉजिटिव, अल्फा भी हेवी है, वो भी पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियस ने उसको क्या रिपेल किया, तो दे बाउंस, सो दे चेंज देयर एंगल, है, उन्होंने अपना एंगल चेंज किया, so they change their angle, something like this. समझ में आ रहा है everyone? Yes. हाँ, तो क्लास प्ले कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए तो हम लोग कंक्लूजन देखते हैं। तो क्लास सबसे पहले एटम कंसिस्ट ऑफ, बोलो पहला, एटम कंसिस्ट ऑफ Proton, electron and वो तो neutron. नहीं, यहाँ से कंक्लूजन, यहाँ से इस मॉडल का कंक्लूजन क्या है? इस मॉडल का कंक्लूजन, द एटम कंसिस्ट ऑफ large number of empty space. Very good. Atom consists of large empty
स्पेस, बराबर है। ओके क्लास दूसरा मुझे बताओ, जो अल्फा पार्टिकल जा रहे थे उनको न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, रिपेल किया? रिपेल। क्यों किया? अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव। पॉजिटिव है, राइट? हाँ, तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स, तो पॉजिटिवली चार्ज लिखते हैं हम लोग, तो पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स गेट रिपेल्ड, बराबर है, एंड डिफ्लेक्शन मतलब समझते आपको? यस मतलब उनका एंगल चेंज होना, राइट? तो क्लास देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल एंगल चेंज हुआ है। क्लास यहाँ पे एंगल कितने से चेंज हुआ है इस केस में? 180 डिग्री से ना, सीधा गया वापस उसी एंगल से पीछे आएगा, राइट? और कुछ का एंगल कुछ और डिग्री से भी चेंज हुआ है ना। तो अल्फा पार्टिकल्स गेट रिपेल्ड, समझा आपको ये मैंने बोला वो? डिफ्लेक्ट मतलब क्या? डिफ्लेक्ट मतलब एंगल चेंज होना। तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पर्पल कलर में दिख रहा है अल्फा पार्टिकल, तो ये यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सीधा गया और वापस पीछे आ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, राइट? और जो अल्फा पार्टिकल बाजू से गए वो भी डिफ्लेक्ट हो गया, उनका एंगल भी क्या हो गया? चेंज हो गया, राइट? तो अल्फा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड, the positive charge alpha particles get repelled and deflected by positive charge in positive charges in atoms. Okay, this positive charge space is called, क्या नाम दिया उसका नाम? This positively charged space is called, बोलिए क्या बोलते हैं स्पेस को? न्यूक्लियस, राइट? दिस पॉजिटिव चार्ज स्पेस इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। ठीक है क्लास, नेक्स्ट वन। ओके तो क्लास न्यूक्लियस वॉल्यूम एटम के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। न्यूक्लियस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एटम जितना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, बराबर है, एंड दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस मैंने ग्रीन से दिखाया, और बाकी सब जो प्लेस यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, किसने ऑक्यूपाई किया है? एटम ने, बराबर है? एटम। हाँ, तो इकोनॉमिक स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, बराबर चलेगा ये? यस। जितना जगह न्यूक्लियस ले रहा है वो एटम ने लिया जगह से कंपेयर करोगे तो नेग्लिजिबल है, हाँ या ना? यस। हाँ। ओके हाँ, तो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है, तो ये सब स्टेटमेंट है रदरफोर्ड के, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस is negligibly small, right, as compared to total volume of atom। क्लास इतना पॉइंट पढ़ लो। तो क्लास एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस, सबको समझा ये क्यों? हाँ क्लास कैसे पता चला एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस? बहुत से अल्फा पार्टिकल कैसे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, सीधा सीधा चले गए। ओके दूसरा पता कैसे चला एटम में न्यूक्लियस होता है? कैसे पता चला एटम में न्यूक्लियस होता है? डिफ्लेक्शन की वजह से पार्टिकल, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, राइट? या अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है और वो वापस पीछे आ रहे, मतलब उनको कोई पॉजिटिव चार्ज चीज क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, बराबर है? यस। तो एटम में न्यूक्लियस होता है, वो भी पता चला। और क्लास बहुत सारे अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, बहुत कम हो रहे थे। बहुत कम मतलब न्यूक्लियस बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए? छोटा। बहुत छोटा होना चाहिए, राइट? तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। तो इफ आस्क यू रेडियस ऑफ एटम, अभी हमने पार्ट किया था, रेडियस ऑफ एटम कितना होता है? एनीबॉडी रिमेंबर स्टिल? 10⁻⁻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 
to raised to minus minus 15 15 meters. 10 raised to minus 15 मीटर। तो हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ एटम इज 10 raised to 5 5. times, right? Radius times of bigger nucleus. than nucleus.
बराबर है। तो क्लास तो ये था उसका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन से उसने जो मॉडल दिया था, ये ऑब्जर्वेशन को दिस ऑब्जर्वेशंस आर यूज्ड टू डेवलप द मॉडल ऑफ एटम बाय रुदरफोर्ड। तो उसका सबसे पहला क्या, तो उसने जो पहले सबसे पहला मॉडल के बारे में बात किया, तो उसके हिसाब से एटम कैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड एन एटम कंसिस्ट ऑफ large empty space. an atom consists of the tiny मतलब क्या, बहुत बड़ा है बहुत छोटा, छोटा बहुत छोटा, tiny positive charged nucleus, right, Nucleus. at its center, बराबर है। हाँ, तो क्लास माय क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है बहुत कम होता है, कम, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, राइट। ऑलमोस्ट हम इलेक्ट्रॉन का 0 लेते हैं ऑलमोस्ट, राइट। हाँ, तो ऑलमोस्ट entire mass of an atom, right, and उसका पॉजिटिव चार्ज is concentrated in किसमें, बोलो। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है, न्यूट्रॉन का मास बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, राइट। तो न्यूक्लियस के बाहर जो भी इलेक्ट्रॉन उनका मास कितना है, ना के बराबर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, तो एटम का मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे उसके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में, वेरी गुड। तो कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, बराबर है। तो क्लास माय क्वेश्चन इज एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है न्यूट्रल होता है, कोई भी एटम चार्ज होता है न्यूट्रल होता है, कार्बन का एटम, कार्बन का एटम, इफ आई से नॉर्मल एटम, कार्बन का एटम चार्ज होता है न्यूक्लियस होता है, सॉरी चार्ज होता है या चार्ज होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल, तो उसको उसका पॉजिटिव चार्ज बैलेंस कौन करता है, हाँ बराबर बोलो, बराबर बोल रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, राइट। हाँ, द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस right is balanced by, कौन करता है बोलो, electron. नेगेटिवली Negatively charged. नेगेटिवली, रिवॉल्विंग मतलब क्या, उसके आजू बाजू में घूमने वाले, राइट। तो उसका चार्ज कौन बैलेंस करता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हाँ, तो क्लास एटम इज इलेक्ट्रिकली चार्ज और न्यूट्रल, न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्लास ठीक है। तो क्लास तो ये मॉडल दिया था किसने, रुदरफोर्ड ने। तो रुदरफोर्ड के हिसाब से एटम ऐसा होना चाहिए। तो एटम के पास एक छोटा सेंटर होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा, एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास उस सेंटर में ही समाया होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ द एटम, ओके। और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए पूरा मास एटम का और पूरा पॉजिटिव चार्ज किसमें होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, बराबर है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल में क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, इसलिए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके क्लास, एक क्वेश्चन आपके लिए, आप आंसर दो, केयरफुली सुना, ये इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो आपका फिजिक्स में ये पार्ट हुआ है नहीं हुआ, और अगर मालूम रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो क्लास ये सेंटर में न्यूक्लियस है, राइट। हम जो बात करते हैं हम हाइड्रोजन के एटम की, ये न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और क्लास ये इलेक्ट्रॉन है जो अराउंड न्यूक्लियस क्या कर रहा है, घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो अराउंड न्यूक्लियस घूम रहा है। क्लास व्हाट इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव, और व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, ओके। क्लास मुझे बताओ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करता है, राइट। तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रुका रहेगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको Attract. अट्रैक्ट करेगा। Attract. तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, राइट। यस, एक तो न्यूक्लियस बहुत हेवी है तो इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना बहुत इजी है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ये आपको समझा ना क्या बोला वो, यस, हाँ। तो क्लास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरता,
तो क्लास क्यों नहीं गिरता? तो क्लास इसका एक ही रीजन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो एक जगह पे रुका नहीं है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग, वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल अराउंड द न्यूक्लियस। तो घूमने से क्या होता है? तो क्लास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्ट, अपनी फिजिक्स में सिखाई है, जब पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं Static force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हाँ क्लास ठीक है, समझा आपको? हाँ। और क्लास दूसरा क्वेश्चन है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरता क्यों नहीं? तो उसका रीजन है कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली घूम रहा है जोर जोर से। तो क्लास आपको एग्जांपल देता हूँ, आप एक पत्थर लो छोटा सा और उसको धागा बांधो और उसको जोर से घुमाना शुरू करो, जोर जोर से। तो क्लास जैसा उसका स्पीड बढ़ता है आपको लगता है कि आपके हाथ पे टेंशन आ रहा है? No. हेलो, नहीं लगता कभी? ऐसा लगता है हाथ, आपके हाथ पे दबाव, ऐसा लग रहा है आपका हाथ, आपके हाथ लगता है ना? आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, चलो कभी भी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, मेले में गए हो, वहाँ पे जायंट व्हील होता है, जायंट व्हील। यस। हाँ, तो जायंट व्हील है ना, तो उसमें अगर बैठते हो, जैसे जैसे वो शुरू होता है स्पीड बढ़ता है, तो ऐसा लगता है तुम लोगों को बाहर फेंक देगा। हाँ. Yes. पर आप बाहर फेंके जाते हो क्या? No. नहीं जाते। No. तो क्लास, तो वो जो फोर्स होता है उसको बोलते, वो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बांधे रखता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज द, एनीबॉडी कभी सुना रहेगा तो? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेरी गुड, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal. सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट? तो क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, राइट? तो इसलिए ना इलेक्ट्रॉन अंदर न्यूक्लियस के अंदर गिरता है ना बाहर फेंका जाता नहीं. है। आर यू क्लियर? तो एक जगह पे घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। आर यू क्लियर? मैं समझा क्या बोला आपको, Yeah. समझाई? Yes. यस। Yes. Yes, ओके, yes. हाँ, ओके, गुड। तो क्लास ये आपको किस सिस्टम जैसा लगता है? तो आप मुझे ये किसके जैसा लगता है? मुझे लगता है यहाँ पे सेंटर में ये सन लग रहा है मुझे, और सोलर मुझे लग रहा है ये अर्थ, बराबर ना? सोलर सिस्टम। Solar system. सोलर सिस्टम जैसा, राइट? तो सन क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस, राइट? Nucleus. और जो अलग अलग प्लैनेट जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, बहुत छोटे छोटे सन के Electron. इलेक्ट्रॉन्स है। Suns. ओके, तो क्लास माय क्वेश्चन इज, सन और अर्थ के, सॉरी, अर्थ और सन के बीच में कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स है? ग्रेविटेशन। Centripetal. अट्रैक्टिव फोर्स कौन सा है? Gravitational. ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो अगर और ये ग्रेविटेशन इतना स्ट्रांग है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि उतने फोर्स के जैसे करना चाहिए, अर्थ को सन ने अट्रैक्ट करना चाहिए और अर्थ सन के अंदर गिरना चाहिए, राइट? पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग विद वेरी हाई वेलोसिटी। अर्थ सन के अराउंड बहुत हाई वेलोसिटी से घूम रहा है, आपको मालूम है ये? Yes. मालूम है, मतलब मालूम है सबको? हाँ, Yeah. Earth is Yeah. revolving around sun with very high velocity and that force is called as which force? सेंट्रीपिटल। Centripetal force। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, राइट? तो प्लस ये जो मॉडल है ना Yes. किसका, रुदरफोर्ड का, ये किसके जैसा है? ये अपना प्लैनेटरी सिस्टम जैसा है, बराबर है? Yes. एवरीवन? Yeah. Yeah. हाँ, तो दिस इज Yes. आल्सो कॉल्ड द प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, प्लैनेटरी मॉडल जैसा हो गया। तो हम लोग देखेंगे अभी इस मॉडल में प्रॉब्लम्स क्या है। हाँ क्लास, बिफोर आई प्रोसीड, चलो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा नहीं, आपको क्या कुछ डाउट है? पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, No. अभी तक मैं आपको जो बताया उसमें कुछ डाउट है? किसी को भी डाउट है? थोड़ा छोटा सिली डाउट कुछ भी हो सकता है, और सिली डाउट्स भी इंपॉर्टेंट होता है। एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट पूछना है बिफोर आई प्रोसीड? अब बोल दो बिंदास। नहीं, मैं एज्यूम करूं नहीं? हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आवाज आ रहा है? Yes. Doubt, sir. हाँ, अगर किसी को डाउट्स नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्लास हम लोग देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। दिस मॉडल के ड्रॉबैक, दो ड्रॉबैक है, एक अभी सीखेंगे और एक अभी नहीं सीख सकते, उसको थोड़ा सा दूसरा कंसेप्ट हमें सीखना पड़ेगा उससे पहले। तो हम लोग होते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। और क्लास ये सब चीजें आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, और क्लास बोलोगे सिर्फ आप फिर क्यों सिखा रहे हो हम लोग को सब ये चीजें? तो क्लास आपको मालूम है जेडब्ल्यू और नीट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्लास आपको ये सब फिजिक्स में नेक्स्ट ईयर सीखना भी है वैसे भी, ठीक है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास आपको कॉन्सेप्ट सीखना अच्छा लगता है या नहीं, या फिर रट्टा मारना है वो भी बोल दो, नहीं तो हम लोग बहुत सिंपल सिंपल करके खत्म कर सकते हैं इसको। कॉन्सेप्ट सीखना है ना आपको? Yes. यस, हाँ। बस ड्रॉबैक्स देखते हैं हम लोग रुदरफोर्ड मॉडल का। ड्रॉबैक्स अपने बुक में है, डायरेक्टली दिया उन्होंने। तो क्लास, तो एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है मैक्सवेल। तो मैक्सवेल क्या बोलता है? एनी चार्ज पार्टिकल
which is in motion continuously keeps on losing its एनर्जी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जो मोशन में है वो क्या करता रहता है, कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी क्या करता रहता है, लूज करता रहता है। ठीक है, ये मैक्सवेल का थ्योरी है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम देखेंगे इसको भी डिटेल में, पर फिलहाल सिंपल बेसिक केस थ्योरी का, जो भी चार्ज है और जो मोशन में है, जो एक जगह पे रुका नहीं है, वो क्या करता रहता है, अपना एनर्जी क्या करता रहता है, बोलो, लूज करता रहता है, राइट, कीप्स ऑन लूजिंग इट्स एनर्जी। तो प्लस माय क्वेश्चन इज, अपने सेंटर में न्यूक्लियस है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, और प्लस इलेक्ट्रॉन है, समझो यहाँ पे इतनी दूर पे इलेक्ट्रॉन है। तो माय क्वेश्चन इज, इलेक्ट्रॉन, डू यू इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल? यस। Yes. क्या वो स्टेशनरी है या घूम रहा है? घूम रहा है। घूम रहा है. तो न्यूक्लियस कहाँ गिर जाएगा, राइट, तो उसको घूमना ही पड़ेगा विद वेरी हाई वेलोसिटी, राइट, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो प्लस इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल which is in motion, charge particle in motion। तो इलेक्ट्रॉन भी इस थ्योरी को फॉलो करेगा, राइट, किसको, मैक्सवेल के थ्योरी को, बिकॉज एनी चार्ज पार्टिकल इन मोशन कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन लूजिंग इट्स एनर्जी। तो प्लस हम लोग को डेरिवेशन से फिजिक्स में प्रूव करने के लिए कि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर, देखो अब ये डेरिवेशन हम लोग को इस साल नहीं करना है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसका प्रूफ है, और अगर टाइम मिला तो मैं आपको डेरिवेशन करवा दूंगा, पर डिफिकल्ट जाएगा एलएन में करना। अब इतना देखो, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास उतना उसका एनर्जी कम। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने आपको, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज्यादा होगा। प्लस ये सब कैसे, क्या उसके प्रूफ है, बहुत सारे प्रूफ्स है, और हम लोग को सीखनी भी है 11 में 12 में, कभी भी। आप फिलहाल याद रखो, मोर द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस मोर इज इट्स एनर्जी। एनर्जी में कितने पार्ट होते हैं, एनर्जी में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी एंड Kinetic. टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर उतना इसका टोटल एनर्जी ज्यादा, और जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास उतना उसका एनर्जी कम। अपने स्टेटमेंट बाहर करके रखो, फिर हम लोग देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसने एक पूरा रिवॉल्यूशन किया, ये घुमा, एक मिनट, अब कैसे इलेक्ट्रॉन है, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उसने एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, एक रोटेशन कंप्लीट किया, मुझे बताओ उसका एनर्जी बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम. कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन लूजिंग इट्स एनर्जी। अगला, अगर उसका एनर्जी कम होगा तो उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना क्यों? चाहिए। क्या बोलता है रूल, मोर डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस मोर एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन घुमा, गोल घुमा, तो उसने क्या किया, एनर्जी लूज किया, तो एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम होगा तो डिस्टेंस भी कम होगा। तो क्लास ये इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास उसने वापस रोटेशन कंप्लीट किया, तो क्लास ऐसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एनर्जी लूज कर रहा है, और उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। राइट। तो इसलिए क्या, अगर घूमता रहा तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक समय में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, राइट, बाय कंटिन्यूअसली लूजिंग। तो क्लास में उसको बोलते हैं फिजिक्स में डी एक्सेलरेशन, समझा, डी एक्सेलरेशन आपने सुना रहेगा। या फिर ठीक है, उसका स्पीड कम होता जाएगा, और वो धीरे धीरे क्या होगा, बोलो, न्यूक्लियस के पास आ जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और मैक्सवेल ने कैलकुलेशन भी करके दिखाया, वो बोला ये सब होने के लिए आपको टाइम लगेगा मैक्सिमम 10⁻⁻10 सेकेंड। क्लास ये बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत कम टाइम है? कम. तो क्लास कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कितना टाइम में गिरना चाहिए, 10⁻10 सेकेंड के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरना चाहिए। पर क्लास अर्थ का फॉर्मेशन हो गया ऑलमोस्ट 5.6 बिलियन ईयर्स, राइट, उससे भी ज्यादा। तब से जो एटम बने वो आज भी अभी के वैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरा नहीं। मतलब क्या, मॉडल में क्या है, प्रॉब्लम है, राइट, ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है कि मॉडल जो बता रहा है वो चीजें सच नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज कर रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है, हमें वो गड़बड़ सुधारना पड़ेगा। तो हम लोग बाद में सुधारेंगे दूसरा मॉडल लेके। पर आपको ये ड्रॉबैक समझा सब लोग को?
Yes. Yes. एक क्वेश्चन सबके लिए, चलो थोड़ा मतलब नथिंग टू डू दिस चैप्टर, पर मैं आपको पूछता हूँ, अगर आपके पास समझो ये अर्थ है, समझो ये सन है और ये अर्थ है, राइट? तो अर्थ इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके? तो अर्थ का एनर्जी क्यों नहीं कम हो रहा? हमने बोला इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, तो ऐसे अर्थ सन के पास क्यों नहीं जा रहा? देखो जस्ट मैं आपको ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, या फिर यू कैन से लॉजिकल क्वेश्चन। एनीबॉडी वुड लाइक टू आंसर? आपका आंसर आपके सामने It's पड़ा हुआ not है। charged. वेरी गुड। अर्थ इज नॉट चार्ज। अर्थ के Charged. चार्ज नहीं है। अपना मैक्सवेल क्या बोलता है, कौन सा पार्टिकल, एनी पार्टिकल, क्या बोला उसने, स्टार्ट कहाँ से किया? Negatively Charged charged. part. एनी चार्ज पार्टिकल, Charged राइट? particle. हाँ, तो अर्थ अपना प्लैनेटरी सिस्टम वाला रूल यहाँ पे नहीं लग रहा, बिकॉज अर्थ इज नॉट चार्ज बट अपना इलेक्ट्रॉन इज चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे मैक्सवेल थ्योरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एवरीवन, Yes. एनी डाउट हियर? No. No. ठीक है, तो क्लास टेल मी फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ Electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, बोलते जाओ, बोलो। एनी चार्ज पार्टिकल विच इज इन Motion continuously Motion keeps on continuously losing its energy. हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल revolving around the nucleus, right? So if electron keeps on revolving around nucleus, its energy should goes on decreasing, Decreasing. and hence its distance from nucleus also should goes on decreasing. So electron should follow which path? Spiral. Spiral path, and ultimately it should fall inside the nucleus. Yeah. Nucleus. But this never happens in practice. This never happens. Okay, ये कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा होना चाहिए। ऐसा अगर हम लोग देखें प्लैनेटरी मॉडल जैसा, उसको देखें, किसको, रदरफोर्ड के मॉडल को, तो ये जो है ऐसा चीज होना चाहिए, पर एटम में ऐसा कुछ होता नहीं। मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ दूसरा चीज देना पड़ेगा जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये उसका ड्रॉबैक हो गया। आर यू क्लियर? यस स्टूडेंट्स? Yes. ओके। Yes. दूसरा ड्रॉबैक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। मतलब उससे दूसरा ड्रॉबैक सीखने से पहले आपको सीखना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं उसको EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्लास समझो हमारे पास कोई सोर्स है लाइट का, समझो हमारे पास टॉर्च है, बटन है, हम लोग जैसे टॉर्च ऑन करेंगे यहाँ से लाइट बाहर आएगा, राइट? तो प्लस ये लाइट जो हमें दिखता है टॉर्च से, जो व्हाइट लाइट दिखता है, हम लोग उसको बोलते हैं लाइट, राइट? तो उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो क्लास अपनी आंखों को सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं दिखता है, हमें सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखते हैं, और जो हमें दिखते हैं हम लोग उसको बोलते हैं, हमें सबके सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें नहीं दिखाई देते। अपने आवर आईज आर नॉट दैट सेंसिटिव टू सेंस ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट ऑन द अर्थ। तो अपने आंख जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखता है, एनीबॉडी, दोस रेडिएशंस आर कॉल्ड एज द Visible. वेरी गुड, विजिबल लाइट, राइट? तो क्लास दुनिया में से विजिबल लाइट है क्या? नहीं ना, दुनिया में और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्लास अगर आप देखोगे, कभी डिस्कवरी चैनल देखोगे, तो वो रात को ना शूटिंग करते हैं, किसका, टाइगर्स का वगैरह, वो पानी पीने को जाता है तो वहाँ पे वो रात को शूटिंग करते हैं। और क्लास रात को जो कैमरा लगा रहता है उसमें उनका शूटिंग होता है। क्लास क्यों होता है, एनीबॉडी मालूम है कैमरा कौन सा होता है? हाँ बोलो बोलो जोर से। हाँ कौन सा, मुझे सुनाई था। तो क्लास वहाँ पे जो कैमरा जो लाइट यूज होता है, वहाँ पे विजिबल लाइट नहीं होता, वहाँ पे लाइट होता है इंफ्रारेड लाइट, ठीक है? इंफ्रारेड। तो क्लास इंफ्रारेड लाइट हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, राइट? तो क्लास मुझे इतना बताना है कि हम लोग जिसको लाइट बोलते हैं उसको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Radiation. तो क्लास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते कैसे, वो देखते हैं हम लोग पहले। तो क्लास
when I say electromagnetic radiation, it is a form of energy. Okay, it is a form of energy. Energy. So electromagnetic radiation is in the form of energy, and energy propagate मतलब क्या? Travel in the form of, that energy travel in the form of wave, Light. wave. हाँ, that light energy propagate in the form of wave. तो class, let me quickly, हाँ, तो class यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ. तो क्लास यहाँ पे आपको ये दिख रहा है डायग्राम? yes, Yes. हाँ, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको. तो क्लास, जब कोई भी सोर्स लाइट, देखो यहाँ से लाइट प्रोपेगेट, यहाँ से लाइट समझो ओरिजिन, मैं यहाँ पे पहले दिखा था आपको कहाँ से, समझो यहाँ से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से लाइट ओरिजिनेट हो रहा है, समझ रहे हैं आपको? तो क्लास, जो लाइट ओरिजिनेट होता है, राइट, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ टू एनर्जीज. लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. दिख रहा है आपको? जो देखो ये कौन सा फील्ड है? आराम से, नहीं समझा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा. क्लास ये देखो, ये प्लेन दिख रहा है, ये कौन सा फील्ड दिख रहा है आपको? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. यस. तो इस प्लेन में जो एनर्जी है कौन से फॉर्म में जा रही है बोलो? वेव magnetic, के फॉर्म में. कौन से कलर का वेव दिखा मुझे यहाँ पे, बताओ मुझे? Blue. Blue. ब्लू कलर का. वेरी गुड. तो वेव जा रहा है ब्लू कलर के फॉर्म में. तो क्लास, ये पूरा जो प्लेन आपको दिख रहा है कौन से कलर में? मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ इसको. तो क्लास, उस ग्रीन कलर में जो वेव है, बरा ना, दैट एनर्जी, जो एनर्जी सोर्स से निकल रहा है, दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो लेट मी शो यू द वेव. तो क्लास, ये दिख रहा है आपको वेव? Yes. तो हाँ, तो ये हो गया आपका कौन सा एनर्जी? मैग्नेटिक एनर्जी, राइट. Yes. तो क्लास, वैसे ही यहाँ पे और एक एनर्जी है, कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो क्लास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर आपको प्लेन देखना है, तो क्लास ये है प्लेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. ओके, कौन से कलर का वेव है बताओ वहाँ पे? Red. Red. कलर का. तो क्लास, कोई भी सोर्स से जब लाइट, और क्लास लाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? तो ये यहाँ पे, ये ओरिजिनल लाइट का, ठीक है. तो जहाँ से लाइट ओरिजिनल होता है, तो क्लास दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, राइट. इसका डायरेक्शन लिखा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. प्रोपोगेशन मतलब क्या? आगे बढ़ने का रास्ता, ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट. तो क्लास, वो कौन सा एक्सिस है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? एक्स एक्सिस, राइट. X. तो एक्स एक्सिस का जो प्लेन है वो क्या? आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, राइट. ओके, वाई एक्सिस के प्लेन में कौन सा वेव है? मैग्नेटिक वेव, राइट. और जेड एक्सिस के प्लेन में कौन सा वेव है? इलेक्ट्रिकल वेव. तो Electric. क्लास, ओके, आपको मालूम है 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. टोटल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दे आर म्यूचुअली Perpendicular. perpendicular. Angle between x and y axis, 90 degree. 80 degree, x and y axis angle 90 degree, and y and z axis 90 degree. 3 प्लेन है आपके पास. एक x एक्सिस का प्लेन है, एक y एक्सिस का प्लेन और एक z एक्सिस का प्लेन है, ठीक है. तो अगर मैं बोलता हूँ x एक्सिस के प्लेन से लाइट, x एक्सिस से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, राइट. तो लाइट 2 वेव बना रहा है, कौन सा? इलेक्ट्रिक वेव एंड Magnetic. मैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रिक वेव समझो बना रहा है कहाँ पे? z एक्सिस पे, राइट. देखो, अब डायग्राम में देख सकते हो, राइट. तो मैग्नेटिक वेव कहाँ पे बना रहा है वो? YX. हाँ, मैग्नेटिक वेव्स y एक्सिस पे. आई होप इट इज क्लियर, सबको समझा ये? तो क्लास, Yes. जब कोई भी सोर्स लाइट क्या करता है? एमिट करता है. जब कोई भी सोर्स क्या एमिट करता है? लाइट एमिट करता है. तो लाइट इज ऑलवेज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बोलो? वेव. Waves. अब क्या 2 टाइप का वेव होता है, कौन सा वेव? इलेक्ट्रिक वेव एंड. Magnetic. अब क्लास, दोनों वेव का प्रॉपर्टी एक्जैक्टली सेम होता है. जैसा इलेक्ट्रिक वेव होता है एक्जैक्टली सेम, मैग्नेटिक वेव भी सेम टू सेम होता है. डिफरेंस क्या है सिर्फ उनके? डिफरेंस किसमें उनके? सिर्फ प्लेन में, राइट. एक का प्लेन y एक्सिस में, तो एक का प्लेन कहाँ पे है? z एक्सिस पे. बता रहा है? Yes. क्लास, डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको डाउट्स होगा तो क्लास चलो वापस बताता हूँ. जब किसी भी सोर्स से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, कोई भी सोर्स से, जब फॉर एग्जांपल सोर्स क्या होता है, तो मैंने आपको टॉर्च बताया, राइट. तो जैसे आप टॉर्च ऑन करोगे तो टॉर्च से क्या एनर्जी निकलना शुरू होगा? कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. तो एनर्जी एक्चुअली कितने एनर्जी का बना हुआ है? हेलो क्लास, वो एनर्जी कितने एनर्जी का बना हुआ है?
दो. 2. कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड Magnetic energy. Magnetical energy. these energies are in the form of Waves. Waves. Wave. okay, these energies are in the form of waves. So class, or these waves are mutually Perpendicular. perpendicular to each other. Perpendicular. Perpendicular. Very good. So these energy in the form of waves and these waves are mutually perpendicular to each other. क्लास बता रहा है? तो क्लास Yes. यहाँ पे मैं आपको ना एक ही वेव दिखा रहा हूँ, या तो इलेक्ट्रिक या तो मैग्नेटिक. क्यों? क्योंकि दोनों क्या होता है एग्जैक्टली Perpendicular. हाँ, पर सिर्फ वो परपेंडिकुलर है, पर बाकी उनका प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होता है, राइट? Yes. Yes. सेम टू Yes. सेम, दोनों एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि दोनों सिर्फ एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, बस इतना डिफरेंस है. तो क्लास आई एम शोइंग यू एनी वन कंपोनेंट, आइदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल. तो क्लास कोई भी कंपोनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता. लेट अस से हम लोग मैग्नेटिक कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्लास ये यहाँ से वेव शुरू हो गया, ठीक है? तो ये वेव आगे बढ़ रहा है. हाँ, तो क्लास पहला क्वेश्चन आपके लिए, ये जो वेव हमने दिखा है, राइट? ये क्लास इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कौन सा वेव बोलते हैं मालूम है आपको? ये किसका इक्वेशन है? दिस इज कॉल्ड एज आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखा है? Parabola. हाँ, नहीं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं. आपको देखो साइन, इसको हम लोग साइन वेव बोलते हैं, साइन वेव, साइन थीटा. तो साइन 90, साइन 180, साइन 90, साइन, ठीक है? इसके डिटेल में मत जाओ, चलो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई सिखाएगा नहीं, फिजिक्स वाला टीचर भी नहीं सिखाएगा, आपको जरूरत ही नहीं है. अगर वेव अगर इस फॉर्म में होता है, क्लास देखो इस फॉर्म के वेव को मैं आपको सिर्फ बताता हूँ आपको जनरल नॉलेज के लिए. अगर वेव इस फॉर्म में तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइन वेव, ठीक है? क्लास अगर आपका वेव ऐसा होता, चलो गेस मारो, इस वेव को बोलते हैं हम लोग, देखो ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर से कोसाइन वेव बोलते हैं उसको, ठीक है? कॉस वेव, ठीक है? तो छोड़ो, लिटरली सच में नो बडी नोज दिस एक्चुअली, इसका किसी का जरूरत ही नहीं आपको, इसका सब चीजों का केमिस्ट्री में एटलीस्ट. क्लास ये वेव कौन से फॉर्म में जा रहा है? दिस इज द साइन वेव के फॉर्म, दिस वेव इज द साइन वेव. आपका मैग्नेटिक वेव भी साइन वेव और आपका इलेक्ट्रिक वेव भी साइन वेव है, ठीक है? हाँ, तो क्लास ये आपका वेव है. तो क्लास इस वेव के हाइट को हम लोग बोलते हैं, ओके? क्लास उससे पहले क्लास ये जो वेव ऊपर है, नीचे देखो ऐसा, ये ऊपर वाला वेव, इतना जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं वेव का. एनीबॉडी स्कूल में सीखा रहेगा? एम्पलीट्यूड. नहीं, एम्पलीट्यूड, हाँ ठीक है, नो डाउट. एम्पलीट्यूड, हाँ. क्रस्ट क्या बोलते हैं इसको? क्रस्ट बोलते हैं ना. तो ये क्या हो गया? क्रस्ट हो गया, राइट? ये भी क्या हो गया? और नीचे के पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रो. ये भी ट्रो हो गया, राइट? ओके. तो क्लास क्रस्ट के हाइट को या ट्रो के हाइट को हम बोलते हैं, आपने अभी आंसर दिया, एम्पलीट्यूड. वी कॉल इट एम्पलीट्यूड. तो हाइट ऑफ द वेव. क्लास ये मुझे बताओ, ये लाइन क्या है, बताओ मुझे समबडी प्लीज. इस लाइन को मैंने आपको थोड़े ना पहले नाम बोला था, इसका कुछ नाम दिया था मैंने. एक्स एक्सिस. हाँ, वो एक्सिस है, नो डाउट. पर ये क्या अपने वेव के लिए क्या है वो? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. Direction of propagation. Very good, perfect. Direction of propagation, right? तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से क्रस्ट से लेके क्रस्ट तक हाइट, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से लेके ड्रॉप तक हाइट, राइट? दैट हाइट इज कॉल्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. तो उसको बोलते हैं वेव का एम्पलीट्यूड. तो ये आपके लिए हो गया वेव का एम्पलीट्यूड. हाँ, तो क्या डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crest या डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive trough is called as wavelength. सिंबल मालूम है आपको? लैम्बडा. वेरी गुड. लैम्बडा is called as a lambda. तो क्लास व्हाट इज यूनिट ऑफ लैम्बडा? लैम्बडा का यूनिट क्या होगा? मीटर. हाँ, वेरी गुड. तो क्लास वेव बहुत छोटा होता है, वेव बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो मीटर आपका आंसर एकदम करेक्ट है. पर क्लास अगर मैं बोलता हूँ कि आप आपके घर का एरिया किलोमीटर स्क्वायर में गिनो, चलेगा? घर का एरिया किलोमीटर स्क्वायर में गिनो. अपने घर इतने बड़े तो होते नहीं किलोमीटर स्क्वायर में, तो हम लोग किसमें मीटर स्क्वायर में करते हैं, राइट? Yes. बराबर ना? तो
तो meter is perfect answer. So wavelength has unit Meter. meter, but for simplicity we go for unit angstrom. Anybody know 1 angstrom? 10 raised to minus 10 meters. 10 raised to minus 10 meter. 10 meter. यहाँ फिर we go for unit nanometer. 10 raised to minus 9 9. 10 to minus 9 meter, right? या फिर you go for unit micron. 1 micron is 10 to minus 6 meter. तो क्लास meter. हाँ, तो क्लास wavelength क्या होता है? What is wavelength? Yeah, define wavelength. Somebody. The Distance between crest or Quantitative trough. crest and trough. distance between Crest and हाँ crest and trough. तो मुझे बताओ, ये वाला crest लिया, ये वाला crest लिया और ये वाला trough लिया, चलेगा? No. नहीं ना, तो crest and trough तो बिल्कुल नहीं होता. It is equivalent to crest, right? Yes. हाँ, Yes. वो भी कैसे है? वो भी कैसे होने चाहिए? Conjugate. Consecutive, बाजू बाजू होने चाहिए, right? Consecutive. तो distance between two, समझा ना आपको क्या बोला मैंने? Yes. The distance between two Consecutive. consecutive और troughs. is called क्या? Wavelength. Wavelength. ओके प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो. समझो मैं कोई मैं कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ वेव इसको, मुझे तो ये वेव जा रहा है, राइट? मैं देखो यहाँ पे मैं दिखाता आपको, ये वेव, ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये वेव जा रहा है, ए जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ऐसा जा रहा है पूरा. जैसे वेव जो जाता रहता है, राइट, हम उसको बोलते हैं वेव ट्रेन. क्या बोलते हैं इसको? वेव ट्रेन. अपना लोकल होता है लोकल ट्रेन, वैसा वेव ट्रेन. तो ऐसा क्रस्ट ट्रफ ऐसा वेव प्रोपोगेट हो रहा है, राइट? तो कॉल्ड वेव ट्रेन. ठीक है. तो प्लस इफ आई सिलेक्ट एनी पॉइंट ऑन अ वेव ट्रेन, मैं वेव ट्रेन पे कोई पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, कोई भी पॉइंट. इफ आई सिलेक्ट एनी पॉइंट, सो लेट मी सिलेक्ट दिस पॉइंट. मैं कोई तो एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, तो लेट मी सिलेक्ट दिस पॉइंट. मैं इसको सिलेक्ट करता हूं. अगला क्लास मैं चेक करूंगा इस पॉइंट से कितना वेव पास हुआ एक सेकंड में. तो क्लास एक वेव कितना होता है वो भी देख लेते हैं. ये बुक में लिखा नहीं है एक वेव कितना होता है. तो क्लास एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के एक वेव बन गया, राइट? ये एक वेव है आपका, समझा आपको? तो क्लास एक सेकंड में कितना वेव पास होगा फ्रॉम गिवन पॉइंट? एनीबॉडी नो व्हाट दैट इज कॉल्ड एज? Frequency. फ्रीक्वेंसी. परफेक्ट. Frequency. फ्रीक्वेंसी. Frequency. तो हाउ डिफाइन फ्रीक्वेंसी? उसका सिंबल क्या होता है Number of क्लास? Of waves हाँ, that can No. pass. No. दिस इज ये सिंबल No ग्रीक bar. लैंग्वेज में इसको बोलते हैं No. न्यू. क्या प्रोनाउंस करते No हैं bar. इसको? इसको नहीं न्यू बोलते हैं, सिर्फ न्यू. न्यू वी प्रोनाउंस इट एज न्यू. एन यू, न्यू फ्रीक्वेंसी. ये ग्रीक लेटर है, ये इंग्लिश वाला वी नहीं है, ग्रीक वाला न्यू है. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी. तो क्लास हाउ यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? द नंबर ऑफ वेव्स. हाँ, किसने Per बोला था unit. प्लीज? That pass in a second. हाँ बराबर है. थोड़ा और क्लियर. Per unit. ऑलमोस्ट 99% करेक्ट है. थोड़ा क्लियर करो. नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू. pass a given point in Pass. 1 हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. पासिंग थ्रू a given point, right? Or you can also say a reference point in one second. बराबर है? It's called as what? Frequency. Okay, unit. Anybody unit? Hertz. Hertz, right? Unit क्या उसका? Hertz. मतलब क्या? Number of waves in
1 सेकेंड, तो इसका यूनिट है हर्ट्स। HZ लिखते हैं हम लोग हर्ट्स, या फिर हम लोग इसको लिखते हैं, और एनीबॉडी हर्ट्स को और क्या लिख सकते हैं हम लोग? हर्ट्स नहीं लिखना तो यस, सिंपल है, गेस करो। हर्ट्स लिखना आपको तो आप लिख सकते हो S raised to पर, minus वेरी गुड, पर सेकेंड, बड़ा ना? एक सेकेंड में कितना वेव्स पास हो रहा है, तो साइकिल्स पर सेकेंड या फिर हर्ट्स, ये दोनों आपके लिए चलेगा। तो आप बोल सकते हैं हर्ट्स लिख सकते हो या फिर साइकिल्स, मतलब कितना वेव्स पास है, साइकिल्स पर सेकेंड, दैट इज अदर। हर्ट्स का नाम साइकिल्स पर सेकेंड होता है एक्चुअली, यूनिट इज हर्ट्स। ओके क्लास, नेक्स्ट थिंग, क्लास अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, दे आर मूविंग राइट, दे आर गोइंग, दे आर प्रोपोगेटिंग, प्रोपोगेटिंग मतलब एक डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। तो ये वेव आपका दिख रहा है, तो दिस इज प्रोपोगेटिंग, द वेव इज प्रोपोगेटिंग, ऐसा वेव प्रोपोगेट हो रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है राइट, आपका वेव, वेव इज प्रोपोगेटिंग। हाँ, तो वेव को स्पीड होगा नहीं होगा, एक जगह पे रुकता है वेव या प्रोपोगेट मूव करता रहता है? Move. मूव करता है राइट। तो वेव का क्या होगा, वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी इसका सिंबल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अपना सिंबल लेते हैं C लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। तो क्लास एनीबॉडी नो यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी? meter per second. मीटर पर सेकेंड, Meter per. हम लोग वेवलेंथ मेजर करते हैं मीटर में राइट, एंड Yes. फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं पर सेकेंड में। तो आप वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा राइट। अब फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करो किसके, किससे, वेवलेंथ से, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेव नंबर। क्लास व्हाट इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी व्हाट इज यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ एज यूनिट, वेवलेंथ एज यूनिट मीटर राइट, फ्रीक्वेंसी एज यूनिट पर सेकंड, एंड मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, Velocity. वेलोसिटी का। तो द स्पीड विथ विच बोलो वेव मूव्स इज कॉल्ड वेलोसिटी, या फिर सिंपल लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ वेव इन क्या, बोलिए? In unit time. हाँ, इन 1 सेकेंड, हाँ यूनिट टाइम में चलेगा, मोस्टली 1 सेकेंड में टाइम, इन 1 सेकेंड इज क्या, Velocity of the wave. वेलोसिटी ऑफ द वेव राइट। इज वेलोसिटी ऑफ द वेव। ओके, यूनिट क्या है इसका, मीटर पर सेकेंड। Second. ओके हाँ, तो क्लास माय क्वेश्चन इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितना होता है? अलग अलग होगा, सेम होगा वेलोसिटी अलग अलग रेडिएशंस का? हाँ, अगर मेरे पास समझो, मेरे पास इंफ्रारेड लाइट है और मेरे पास विजिबल लाइट है, फिर मेरे पास एक्सरे है, तीनों का वेलोसिटी सेम होगा, डिफरेंट होगा? Different. 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 डिफरेंट होगा राइट। तो क्लास नहीं, आंसर है नहीं, सेम होता है। तो हर एक दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सबका वेलोसिटी सेम है। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर सेम वेलोसिटी, एंड दैट वेलोसिटी इज 3 into, that velocity is 3 into 10 raised to 10 raised to 8 8 meter per second. मीटर पर सेकेंड, 3 into 10 to 8 मीटर सेकेंड सबका। तो क्या आप बोलोगे ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूँ ऐसे कैसे। तो सबका वेलोसिटी सेम कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो क्लास ध्यान दो, समझो मेरे पास एक वेव है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और ये वेव ऐसा जा रहा है राइट। क्लास का वेवलेंथ समझो लैम्बडा वन है, बराबर है? वेवलेंथ कितना इसका, लैम्बडा वन है। और क्लास समझो मैं देखूंगा कोई एक पॉइंट लेकर करूंगा और देखूंगा उस पॉइंट से कितना वेव्स पास हो रहा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है समझो, ν1 है। क्लास अभी दूसरा वेव देखता हूँ मैं यहाँ पे, और आई एम ड्राइंग वन मोर वेव, दिस इज डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, is different electron, this is another electromagnetic radiation, this is moving like this. Plus my question is, यहाँ पे wavelength lambda 2 है right, और if I select any point on this wave, frequency ν2 है। तो my question is, पहले केस में wavelength ज्यादा है कम है, फिर दूसरे केस से ज्यादा है। ज्यादा है, wavelength ज्यादा है, तो wavelength हाई है। तो अगर वेवलेंथ हाई होगा तो एक पॉइंट से ज्यादा वेव पास करेंगे या कम वेव पास करेंगे? कम। 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 तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम होगा, बराबर है?
तो दूसरे केस में वेवलेंथ ज्यादा है कम है? दूसरे केस कम। में कम वेवलेंथ कम है, राइट? अगर वेवलेंथ कम है तो गिवन पॉइंट से वेव ज्यादा पास करेगा, कम पास करेगा? Frequency. ज्यादा फ्रॉम गिवन पॉइंट नंबर ऑफ वेव पासिंग विल बी मोर, एग्री? More. Yeah. यस तो यहाँ पे वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम है तो फ्रॉम गिवन पॉइंट मोर नंबर ऑफ वेव्स कैन पास, राइट? एट गिवन पॉइंट, तो फ्रीक्वेंसी विल बी हाई। more. तो हाई तो क्या होगा? तो वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है वेवलेंथ कम होता है, पर उनका प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा सेम। फॉर एग्जांपल इफ आई से वेवलेंथ 100, फ्रीक्वेंसी, जस्ट फॉर एग्जांपल, नॉट एग्जैक्टली, वेवलेंथ 100, फ्रीक्वेंसी समझो 20, ठीक है? थोड़े 120 2000, राइट? से फॉर एग्जांपल वेवलेंथ एंड आई एम सॉरी, देखो एग्जैक्ट रियल एग्जांपल है लैम्बडा एंड न्यू वन। हाँ प्लस समझो मैंने इसको कम कर दिया, इसको मैंने कर दिया 50, तो ये हो जाएगा 2. 40। तो क्या हुआ मुझे था, मैंने वेवलेंथ को क्या कर दिया? कम कर दिया, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? मैंने बढ़ा दिया, राइट? इसका प्रोडक्ट भी कितना है? 2000, राइट? तो मतलब क्या, अगर एक वैल्यू बढ़ता है तो दूसरा कम होता है, और दूसरे एक दूसरे को क्या करते हैं, वो बैलेंस करते हैं, और हमेशा क्या होता है? स्पीड क्या होता है? बोलो। Same. सेम होता है। Same. इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द सेम स्पीड। कितना स्पीड होता है सबका? 3 into 10⁸ मीटर पर So सेकंड। 8 meter per second. हाँ तो क्या लास्ट प्रॉपर्टी है रेडिएशंस का? उसका वेव नंबर। हम बात करेंगे वेव नंबर की। उसका सिंबल होता है क्लास, ये सिंबल क्या होता है हम लोग? न्यू, राइट? किसके लिए कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी के लिए। क्लास के ऊपर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग Bar. बार, तो इसको बोलते हैं हम लोग, हाउ यू प्रोनाउंस इट? न्यू Bar. बार। We read it like new bar. So new bar is symbol for wave number. Plus simply wave number is reciprocal of wavelength. So if you divide wavelength by 1, so that is called as the wave number. Plus इसका मतलब क्या होता है आपको बता दो। प्लस मुझे मेरा डिस्टेंस है 1 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। एंड लेंथ ऑफ वन वेव इज 0.1 मीटर। लैम्बडा कितना है? 0.1 मीटर। प्लस कितना वेव्स होगा 1 मीटर में? मेरे पास 1 मीटर डिस्टेंस है। आई सिलेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस। एक मैं वापस करता हूँ, मैं आई सिलेक्ट 1 मीटर डिस्टेंस। मैंने एक स्केल लेके 1 मीटर डिस्टेंस ले किया मैंने, ये 1 मीटर डिस्टेंस लिया मैंने ऑन स्केल लेके मैंने डिस्टेंस ले किया 1 मीटर। से फॉर एग्जांपल दिस 1 मीटर डिस्टेंस एंड प्लस लेंथ ऑफ वन सिंगल वेव। एक वेव का लेंथ कितना है? दिस इज डिस्टेंस इज 1 मीटर एंड लेंथ ऑफ वन वेव इज 0.1 मीटर। तो क्लास में क्वेश्चन इज 1 मिनट डिस्टेंस में कितना वेव फिट हो पाएगा? बोलो। 10 क्लास कैसे है? 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ऐसे बराबर ना? तो 0.1 into 10 कितना होता है? 1 मीटर, बराबर है? 1. क्लास में वही किया। तो क्लास ये 1 क्या आपका? 1 मीटर डिस्टेंस, राइट? और ये लैम्बडा क्या है? लैम्बडा क्या है उसका? एक वेव का लेंथ, वेव लेंथ, राइट? समझ में आपको? यस लेंथ ऑफ सिंगल वेव। तो क्लास अब रेशियो लोगे, ठीक है? 1 लैम्बडा। अब इफ यू 1 लैम्बडा तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इट्स क्या? वेव नंबर। Wave या फिर number. सिंपली बोलेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ Wavelength. वेव नंबर, इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तो क्लास हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में क्या क्या सीखा? तो व्हेन एनी सोर्स इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द सोर्स emits always two types of energy. Which energies? Electric. इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, राइट? हाँ। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी आर म्यूचुअली Perpendicular. perpendicular to each other, right? They are perpendicular to each other. क्लास दोनों में कुछ भी डिफरेंस है सिर्फ प्लेन छोड़ के? No. They are exactly identical, right? सिर्फ क्या डिफरेंस है उनका? प्लेन का। दोनों से सिर्फ अलग अलग प्लेन में होते हैं, बराबर है? Yes. Both energies are in the different plane, otherwise they have exactly same properties. Okay.
नेक्स्ट थिंग, ओके, तो वेव व्हेन वेव प्रोपोगेट, जब वेव प्रोपोगेट होता है तो इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो क्लास कौन सा वेव बोला मैंने आपको? Electromagnetic. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव। तो आपके पास दो टाइप का साइन वेव होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड Magnetic energy. Magnetic energy. हाँ, तो क्लास हाइट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड एज Amplitude. amplitude. Distance between two consecutive crusts or consecutive troughs is called as Wavelength. wavelength. Number of waves passing through particular point in 1 second is called as Frequency. Frequency. okay. If you multiply wavelength by frequency, आपको क्या मिलता है? Velocity. 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 और क्लास अगर किसी वेव का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी Come. कम होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। Wavelength कम हो। और उनको मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा आपको एक ही आएगा। कौन सा आएगा? कितना आएगा? 3 into 10 3 into 10 raised to 8 मीटर 8 per second. second. actually वो 2.99 है, हम लोग उसको 3 लेते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल विद द, बोलो, सेम velocity. सेम वेलोसिटी। तो उनका सबका वेलोसिटी कितना होता है? सबका वेलोसिटी कितना होता है? 3 into 10 raised. 3 into 10 raised to 8 8 meter meter per per second. second. Okay, so if I select a distance, unit distance, suppose if I select distance 1 angstrom, कितना distance लेके मैंने? 1 angstrom, and length of one wave is 0.2 angstrom. Tell me how many waves? मैंने 1 angstrom distance लेके, यूनिट डिस्टेंस लेके मैंने 1, I select distance 1 angstrom 5 और एक waves. वेव का लेंथ 0.2 है। How many waves will be there? 5 waves. आपने कैसे किया ये? आपने कैसे किया? You divide 1 upon 0.2. हाँ, 1 by lambda किया आपने, बराबर है? Yes. तो 1 इस क्या, 1 क्या हो गया आपका? मतलब बोलो 1 क्या, आपके लिए 1 क्या है? आपके लिए 1 है आपका यूनिट डिस्टेंस, कितना? 1 एंगस्ट्रॉम, राइट? Armstrong. ओके, डिवाइडेड बाय एक वेव का लेंथ कितना? 0.2 2 एंगस्ट्रॉम, तो डिवाइडेड बाय 0.2, तो आपको कितना वेव्स मिला? 5 वेव्स मिला, राइट? सिंपल फॉर्मूला बोलेंगे तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज द वेव Wave नंबर। number. ठीक है, तो क्लास इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इतना पढ़ के रखो। हाँ क्लास, मैंने आपका जो इससे पहले जो टॉपिक मैंने सिखाया आपको उसका नोट सर के पास दे दिया है।